बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class we did till J alphabet. हमने J alphabet तक bouncy alphabet सीखे थे. We tried making. Inshallah, I have told you keep bouncy alphabets क्यों कहलाते हैं. Bouncy alphabets is the name given to these alphabets because their strokes are not aligned in a straight line. उनके जो strokes होते हैं वो straight line में aligned नहीं होते. It makes feel that if we throw a ball and if it at 1 second it is here, another second it is here, third second it is here, this way it bounces. वो बाउंस होती रहती है. इसी तरह फर्स्ट में यहाँ पे ये स्ट्रोक ऊपर है, फिर नीचे है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है. इस तरह से इनके स्ट्रोक्स बाउंस होते रहते हैं. When we write a word, जब भी हम कोई मुकम्मल वर्ड लिखते हैं तो you will find कि एक लेटर पे कोई स्ट्रोक ऊपर है, कोई स्ट्रोक नीचे होते हैं. That's why these are known as bouncy alphabets. In the last class we did till here. इंशाल्लाह J repeat करके हम K alphabet तक जाएंगे. Bismillahirrahmanirrahim. For writing J alphabet, line alignment will be TMBD D1. Alphabet line alignment क्या होगा हमारे लिए J alphabet के लिए TMBD D1. TMB, D and D1. This is the line alignment for writing J alphabet. ठीक है, J alphabet के लिए ये line alignment होगा. First we will start from between B and D से हम start करेंगे एक upstroke and go till P. P तक ले जाएंगे एक upstroke. Upstroke is always M. Then we will bring a descending between D D1 or below D D1. दोनों भी कर सकते हैं आप. D D1 के बीच में ला सकते हैं, या D1 तक भी ले जा सकते हैं और D1 के नीचे भी ले जा सकते हैं. ठीक है, this way we will make it. I'll show you कि अगर हमें और नीचे लेकर जाना है, और नीचे लेकर कब जाएंगे इंशाल्लाह ये हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे जब हम वर्ड बनाते हैं. अभी हम सेम कि यहाँ तक रखें, नीचे लगाएं, ये आपकी मर्जी है. दैट डिपेंड्स अपॉन बैलेंसिंग द अल्फाबेट. जब हम कोई वर्ड लिखेंगे हम देखेंगे कि इससे पहले वाला वर्ड अगर ज्यादा ऊपर है तो इसे नीचे लेकर जाएंगे. दैट इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू इन द वर्ड फॉर्मेशन. जब हम वर्ड्स लिखेंगे इंशाल्लाह आई टेल यू देयर. This is alphabet J. Now inshallah for K alphabet we will use the line alignment A, A1, A, T, M, B and D. A1, A2 and B. क्योंकि हमने D1 इसलिए एक्सटेंशन लाइन का यूज नहीं किया है because we know कि K alphabet को हमें ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना होगा. Now from between B and D start an upstroke till M. M तक upstroke लगाएंगे and then ascending loop from here between A A1. A A1 तक लेकर जाएंगे, B और D के बीच में स्टॉप करेंगे. Keep in mind कि ये जो हमारा upstroke है और ये ascending loop का जो down stroke आया है, there should be a little gap. अभी इंशाल्लाह दोबारा बनाकर मैं आपको explain करती हूँ clearly. Then you will start a reverse oval from here. M D के बीच में ये स्टॉप करेगा रिवर्स ओवल. ये हमने नॉर्मल फॉन्ट में भी सीखा है, नॉर्मल अल्फाबेट्स में भी सीखा है, इसी तरह बनाना. एंड देन इट इज द अंडरटर्न. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू अनदर चैनल. फ्रॉम B, between B and D take an upstroke till M. This way ascending loop from here and down. ये जो ascending loop का ये जो हमारा down stroke आया है, it should be little down from this upstroke. ठीक है. Now reverse oval from here between B and M. और ये reverse oval इस तरह से बनाएंगे कि ये pointed हो जाए. देखिए यहाँ पर अगर you can see last में जहाँ पर ये मिल रहा है वहाँ पर ये pointed हो जाना चाहिए. If I make it separately this way, देखिए ये ऐसे बनाएंगे.
This way we will make the reverse oval, but it should become pointed from here. जहां से ये joining position है वहां से pointed हो जाना चाहिए. Next we will take underturn down between D D1 और ये ऊपर. ठीक है. There is a bounciness between all these three strokes. These are not aligned in a straight line. एक straight line में नहीं है. If I show you कि हमने normal point में कैसे बनाया है, तो you will find out the difference. Difference आपको इंशाल्लाह क्लियरली समझ में आएगा. How we make ATMB में बनाते हैं. ATMB 4 लाइन का लेता है. This is the upstroke. This is the ascending loop. You have to revise. अभी इंशाल्लाह जब तक आप लोग इस पे बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बहुत इजी काम है. आप साथ साथ रिवाइज करते रहे. These are not very costly. ये कॉस्टली भी नहीं है, तो आप साथ के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करें. You will attain a perfection in this. इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हाथ पर सेट हो जाते हैं अल्फाबेट्स. ठीक है. Then we made the reverse oval like this and the underturn like this. ये हमारा K अल्फाबेट था नॉर्मल फॉन्ट में. Now you can see the difference. Shape remains same. Shape जो है वो same रहती है. ठीक है. Now inshallah continuing to after there we have L alphabet. It is very easy. For L we have to make the line alignment A1 A T M D D. A1 A T M D D. ठीक है. How we will make it? Let's see. Starting from D till M, we will make an upstroke. Starting from D till M, we will make an upstroke like this. Okay. Now, from here, ascending loop till AA1, till the center of AA1. AA1 के center तक जाएंगे. Then bend down और B और D के बीच में मिलाकर इसे टर्न करेंगे. देखिए अब आप कह सकते हैं कि हम ज्यादातर अल्फाबेट्स में बी और डी के बीच से निकाल रहे थे अपस्ट्रोक को. यहाँ पर हमने सिंपल डी से क्यों निकाला है? इट इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्ट्रोक्स हैं. एक अपस्ट्रोक लगाना, दूसरा ये असेंडिंग लूप का लूप है. तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्ट्रोक है, तो इनमें बाउंसीनेस देने के लिए इसे थोड़ा ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे. If we would have started from here only, यहीं से स्टार्ट करते थे कि एक अकॉर्डिंग्स में आ जाना था. ठीक है. That we do not want. तो इसके लिए हमने इसे सिर्फ 2 स्ट्रोक्स होने की वजह से यहाँ पर हम पहला अप स्ट्रोक लगाएंगे. पहला जो अप स्ट्रोक है दैट इज बिटवीन डी एंड एम. ये हमारा असेंडिंग लूप एंड दिस इज द एल अल्फाबेट. आप इसे विदाउट लूप भी बना सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि वर्ड में स्पेस कम है, यानी यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट इन अ लाइन. अगर कोई बड़ा वर्ड है, फॉर एग्जांपल नॉलेज लिखना है, बड़ा सा वर्ड है, पूरी लाइन में नहीं आ रहा है, तो व्हाट वी विल डू, सिंपल यहाँ पे ये लगाकर यहाँ से हम डाउन स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं. देन वी विल जॉइन इट विद ई अल्फाबेट. ई के लिए हमने वही चीज कि छोटा सा ओवल बनाना है. LED होता है ना, ये रहेगा. फिर आप यहीं पर D ज्वाइन कर देंगे. अब जब L भी हमने विदाउट लूप बनाया है, तो D के लिए भी हम विदाउट लूप बना लेते हैं. दिस वे वी विल जॉइन द अल्फाबेट्स. ठीक है. विदाउट लूप और विद लूप, बट इट शुड हैव अ लिटिल बाउंसीनेस. ठीक है. नाउ गोइंग ऑन टू MNOP. M alphabet के लिए we will use ATMDD because it is the lowercase alphabet. ATMDD. ATMDD. It is the line alignment. Inshallah I am going थोड़ा सा स्टार्ट स्पेस पे चल रहे हैं उस पर, क्योंकि ये हमने सीख लिया है. बस हमने स्ट्रोक्स को देखना है कि कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा. ओनली वी हैव टू सी दिस. फिर हम अपर केस भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा FTG वो डिफरेंट होता है, उनमें थोड़ा वक्त लेंगे. फिर इंशाल्लाह हम वर्ड फॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे. होपफुली मंडे ट्यूसडे हम दोनों अपर केस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह वर्ड फॉर्मेशन करेंगे. वर्ड फॉर्मेशन के बाद हमारा क्रिएटिव वर्क जो हमारा ब्लेंडिंग, शेडो फॉर्मेशन वो स्टार्ट होता है. क्योंकि हम ये सब कुछ सीख चुके हैं, अब ये बहुत सारी बारी हो चुका है, बस हमने इनकी
शेप्स चेंज सर आप करनी है, जल्दी थोड़ा से ऊपर जल्दी वो पिक्चर्स भी भेज दीजिए बैकग्राउंड के बाद। जी इंशाल्लाह I'll send you today or tomorrow. Today I'll send you. M के लिए हम सबसे पहले अप स्ट्रोक लगाएंगे बिटवीन B एंड M अप स्ट्रोक। यहाँ भी वही केस है, B और M से हम एक अप स्ट्रोक लगाएंगे एंड देन T to B we will make a डाउन स्ट्रोक। बिल्कुल लाइन के अलाइनमेंट में है ये, ठीक है। यहाँ से हम ओवर टर्न स्टार्ट करेंगे, गो बिटवीन A एंड B बाय बिटवीन A एंड B हम ओवरटर्न लेंगे और M के नीचे थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, M B के बीच में थोड़ा स्टॉप करेंगे एंड देन कंपाउंड कर फ्रॉम हियर। सिस्टर वैसे हम कैपिटल एम को ऐसे लिखते हैं ना? ये बाउंसी अल्फाबेट है डियर, यहाँ पर हम M कैपिटल्स में जो लिखेंगे दैट विल बी टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट होगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यू विल कम टू नो। यहाँ पर हम जब बाउंसी अल्फाबेट में कैपिटल M बनाते हैं दैट इज जैसा हम नॉर्मल बनाते हैं ऐसा M लिखते हैं हम। यहाँ पर जब हम अपर केस में जाएंगे M हम ऐसा बनाएंगे, सिंपल ऐसा M बनाया जाएगा, ठीक है जी। ये ओवरटर्न अंडरटर्न नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल स्ट्रेट लाइंस ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने पहला जो ये लुक है ये उसको आप इसे नीचे इसे ऊपर कर सकती हैं और इसे नीचे कर सकती है। M और W में दो मॉडिफिकेशन होते हैं कि आप ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर भी कर सकती हैं या फिर ऐसे भी कर सकती हैं, बट वी हैव टू गिव बाउंसी इफेक्ट। देखिए दोबारा बनाते हैं दूसरी तरह से, दिस इज द अप स्ट्रोक, दिस इज द डाउन स्ट्रोक, ठीक है। अभी हम दूसरा ये वाला नीचे रखेंगे, ये ओवरटर्न है, M B के बीच में स्टॉप किया हमने। अभी यहाँ से कंपाउंड कर्व स्टार्ट करेंगे एंड टेक टिल मिड ऑफ B एंड D, B और D के बीच तक जाएंगे और ये बनाएंगे, ठीक है। यू कैन यूज एनी, लेकिन एक चीज रहती है कि ये वाला हम जब यूज करते हैं अगर स्टार्टिंग में M आ रहा है, देखिए अगर कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल्स में लिखेंगे, अपर केस वाला अल्फाबेट बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड ऐसा है जहां ना हम स्टार्टिंग में कैपिटल बनाना चाहते हैं लेकिन हम स्टार्टिंग में M बना रहे हैं, for example, be mindful of your actions. You are writing, be mindful of your actions. तो माइंडफुल में आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको इसका कैपिटल बनाना है, तो स्टार्टिंग में जब भी आएगा तो वी विल फोकस कि ये वाला बनाया जाए और एंडिंग में जब भी आएगा ये वाला बनाया जाए। द रीजन बिहाइंड इज कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बाउंसीनेस ऊपर रहे और बीच में हम छोटे अल्फाबेट्स बनाते हैं, इंशाल्लाह वो बैलेंसिंग हम सिखाएंगे आपको, लेकिन लास्ट में हम अपर ऊपर की तरफ होकर ये बीच में रहे, ये एंडिंग में अगर M आ रहा है तो ये वाला बनाने की कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग में अल्फाबेट के वर्ड के सॉरी M आ रहा है तो ये वाला बनाते हैं। अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई सा भी बना सकते हैं, बट मोर प्रेफरेबली आप कोटेशंस में देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग अल्फाबेट है, स्टार्टिंग में हमने बनाना है तो हम ये वाला मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। आई मेक इट अगेन, B M के बीच से हमने एक अप स्ट्रोक लगाना है, B और M के बीच में डाउन स्ट्रोक बिटवीन P B, P M B, ये डाउन स्ट्रोक, दिस इज द ओवरटर्न, दिस इज द ओवरटर्न, M के थोड़ा नीचे स्टॉप करेंगे इसे एंड देन कंपाउंड कर दिस वे, कंपाउंड कर विल गो बिटवीन B एंड B, B एंड B के बीच में जाएगा और फिर बंद हो जाएगा, सॉरी ऊपर अप स्ट्रोक निकल जाएगा फॉर फर्दर कनेक्शन। दूसरा बनाते हैं, दिस इज द अप स्ट्रोक, दिस इज द डाउन स्ट्रोक, ये हमारा ओवरटर्न एंड दिस इज द कंपाउंड कर्व। अभी दो चार बारी आप इसको लाइन अलाइनमेंट के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ये जरूरत भी नहीं रहेगी कि लाइन अलाइनमेंट चेक
For alphabet N, we will use the line alignment ATMBD just as for M. जैसा M के लिए use किया है ऐसा ही N के लिए use करेंगे. Line alignment will be the same for M and N, and we will start like this. See, D M के बीच से हम upstroke लगाएंगे. Upstroke is always thin. दो चीजें आई होप आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि जब भी ब्रश पेन ऊपर जाएगा नीचे से तो थिन स्ट्रोक आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो थिक स्ट्रोक आएगा, और आपका हैंड ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे होल्ड नहीं करेंगे. यू विल नॉट होल्ड एंड राइट दिस वे, यू हैव टू होल्ड द ब्रश पेन दिस वे. ठीक है. नाउ फ्रॉम टी टू बी वी विल मेक अ डाउन स्ट्रोक लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट द कंपाउंड कर्व दिस वे. This is alphabet N. ठीक है. This is alphabet N. This is the upstroke for further connections, further joining of any other alphabet. This is the upstroke. I hope it is very clear कि पहला हम upstroke B M के बीच में क्यों लगा रहे हैं. The only reason being कि हमें bounciness दिखानी है alphabet के strokes में. ठीक है. You can slightly make them little curvy. आप थोड़ा सा slanting भी इन alphabets को बना सकते हैं. जो नॉर्मल फॉन्ट रहता है उसे स्ट्रेट बनाए तो अच्छा रहता है, लेकिन इन्हें हम जरा सा कर्वीनेस भी दे सकते हैं. We can make little curvy also. ठीक है. This is the compound curve. This is alphabet N. Now going on to O. O alphabet के लिए हमारे पास simple TMD line alignment. TMD. D लिख लीजिए क्योंकि B और D के बीच से हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओवल स्टार्ट, सॉरी अपस्ट्रोक स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ से हम अपस्ट्रोक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिटवीन B and D टिल बिटवीन M and B. D और D के बीच से शुरू करके M D के बीच में हम अपस्ट्रोक लगाएंगे, and then we will make an oval, small oval, such that it is neither touching the upstroke, neither touching the top line, neither touching the बेस लाइन. ना ऊपर की लाइन को टच कर रहा है और ना ही नीचे की लाइन को टच कर रहा है. ठीक है. फिर यहाँ से हम कॉमा डॉट स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज द अपस्ट्रोक कॉमा डॉट. इसमें एक मॉडिफिकेशन और होती है, वो भी समझा देते हैं इंशाल्लाह. पहले आप ये दोबारा से देखिए. डी और डी के बीच से स्टार्ट करेंगे, डी तक रोक लीजिए क्योंकि ओवल बनाना है. This is the oval, small oval, and you can start the comma dot from here only. It is O. ठीक है. छोटा सा O बना दो. Next we have, इसमें क्या रहता है एक मॉडिफिकेशन कि आप comma dot लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. बाउंसी अल्फाबेट में हम लोअर केस के O में comma dot लगाएं या ना लगाएं हमारी मर्जी होती है. We can also make simple this way, and फिर ये ए ना लगे इसके लिए हम यहाँ से अपस्ट्रोक निकालते हैं यहाँ से. ठीक है. ये भी बनाते हैं. I'll make it another time. दोबारा बनाते हैं. अपस्ट्रोक बिटवीन बी एंड डी से स्टार्ट होके एम बी के बीच तक जाएगा. छोटा सा ओवल बनाएंगे, and you can start the comma dot from here only. कॉमा डॉट यहीं से स्टार्ट कर लें. ये कॉमा डॉट है और ये हमारा ओके. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. सो इंशाल्लाह आज के लिए आपके लिए टिप है कि नेवर एवर गो फॉर अप्रिसिएशन. देखिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, इंशाल्लाह मैंने बोला था कि आपको बीच बीच में, बिकॉज वी डू ऑल्सो टेक द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, वहीं से हम आपके लिए कुछ बोनस टिप्स रखते हैं कि हम क्लासेस में वी टेल समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू. कि वी शुड नेवर एवर गो फॉर अप्रिसिएशन. देखिए हम कोई भी काम करते हैं, इंसान की ये फितरत होती है बाय नेचर, उसे अच्छा लगता है कि दूसरा बंदा उसकी तारीफ करे. एनी वर्क, हम यहाँ पर कैलीग्राफी सीख रहे हैं तो उसी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये आप अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी
डिपार्टमेंट में आप इसे लगा सकती हैं, किसी भी जगह पर लगा सकती हैं। यू शुड नॉट सीक अप्रिसिएशन फॉर एनीथिंग। कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप दिल में ख्वाहिश लेकर ना रखें कि मेरी तारीफ की जाएगी, आई शुड बी अप्रिशिएटेड, बट you should do that work with such great with such whole heartedly, लेकिन कि आप उसमें इतना परफेक्शन दे पाए कि दूसरा बंदा खुद की तारीफ करने पे लग जाए। लेकिन हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि अगर हम तारीफ पूरे ख्वाहिशमंद होते हैं, तो अगर सामने वाला बंदा या जिससे हम तारीफ चाहते हैं, तो अगर वो तारीफ नहीं करता, हम क्या हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर हम ख्वाहिश ही नहीं करेंगे कि भाई मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग दिस कैलीग्राफी फॉर योर सेल्फ, अगर आप इतना अच्छा कर लेती हैं कि आपकी तारीफ कर देते हैं, तो यू विल फील बेटर। और उसको भी अपने सर पे सवार नहीं होने देना कि भाई आप इतना अच्छा कैलीग्राफी करती हैं कि सब आपकी तारीफ करते हैं। तो आप ये भी ना करें कि उसको अपनी तारीफ को अपने सर पे सवार कर लें, कि फिर क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर बंदा खराब करने लगता है काम, उसकी वो चीज चली जाती है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना। आप समझती हैं कि आपकी तारीफ हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इट इज नॉट फॉर ओनली कैलीग्राफी, ये बहुत सारी जगह आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कोई भी काम करती हैं, सबसे पहले तो आप ख्वाहिशमंद ना हो कि मेरी तारीफ की जाए, दैट आई शुड बी गिवन क्रेडिट, मुझे क्रेडिट दिया जाए। तो आपने कोई भी काम किया, आप फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ है, आप बच्चे देखती हैं, आप घर का सारा काम करती हैं, तो आप इसलिए ना करें कि आपकी इतने सारे काम देखकर दूसरा बंदा कहे कि आपका एहसान माने कि आप बहुत सारा काम करती हैं। इस बात की ख्वाहिशमंद ना हो कि आपके काम को सराहा जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इन योर लाइफ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, रादर यू शुड बी थिंकिंग कि मेरे हाँ बुराई तो मिल सकती है, लेकिन अच्छाई नहीं मिलती। अच्छाई अल्लाह से चाहे, और अपना रिवॉर्ड जो है उसको भी यू शुड सीक फ्रॉम अल्लाह। और दूसरी बात ये कि आप अपनी खुशी के लिए करो। देखिए, अब आप ये काम कर रही हैं, तो इसे अपनी खुशी के लिए करें, और इतने दिल से करें कि जब आप दिल से कोई काम करती हैं, तो उसमें इंशाल्लाह परफेक्शन खुद ही आ जाता है। ये ना कहें कि मैं कैलीग्राफी सीख रही हूँ तो मेरी मम्मी, मेरे बहन भाई मेरी तारीफ करें, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं क्रिएटिव वर्क कर रही हूँ। और जब आप अच्छा करेंगे, दिल से करेंगे, तो इंशाल्लाह इतना परफेक्शन आएगा कि आप खुद भी खुश होंगे और देखने वाला भी खुश हो जाएगा। बट डोंट एवर गो फॉर अप्रिसिएशन, ठीक है? क्योंकि अगर अप्रिसिएशन नहीं होती ना, जिसकी हम उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, अगर कोई ना करे या कमी निकाल ले, तो फिर हमारा दिल बुरा हो जाता है। ओके, इंशाल्लाह। कंटिन्यूइंग टू अल्फाबेट पी। टी के लिए हम सबसे पहले डाउन स्ट्रोक लगाएंगे, टी एम से स्टार्ट करके डी डी वन के बीच में हम रोकेंगे। ठीक है, दिस इज द डाउन स्ट्रोक। वी स्टार्टेड फ्रॉम बिटवीन टी एंड एम, डी डी वन। So you can take a note that we do not have to expect anything from anyone and we don't deserve any credit from anyone. हमें किसी से कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए अपने काम का। ये मोस्टली इन लॉज में होता है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे रिवर्स ओवल। रिवर्स ओवल वी विल मेक इन सच अ वे दैट इट विल गो बिटवीन ए। यहाँ पर अगर हम ए लाइन अलाइनमेंट लगा लें, तो ये ए और डी के बीच में जाएगा और डी वन तक आएगा। ठीक है, ए और टी के बीच में हम ये रिवर्स ओवल लेकर जाएंगे, एंड देन वी विल मेक अ लूप ओवर हियर। दिस लूप विल बी यूज्ड फॉर कनेक्शंस। ठीक है, ये कनेक्शन के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई जॉइन टी ए, या ओ समझ लीजिए, पी ओ टी पॉट, फ्लावर पॉट। ठीक है, आई मेक इट अगेन। सी, यहाँ पर हम अगर कनेक्शन पहले भी देना, तो हम डाउन वो अप स्ट्रोक भी लगा लेते हैं। इट इज द डाउन स्ट्रोक। यहाँ पर आप एक अप स्ट्रोक भी लगा सकती हैं। देन स्टार्ट द रिवर्स ओवल फ्रॉम हेयर। ए टी के बीच में जाएंगे, टी लाइन पे स्टॉप करेंगे, एंड दिस विल बी द अप स्ट्रोक फॉर फर्दर कनेक्शंस। ठीक है, इंशाल्लाह क्यू अल्फाबेट करके स्टॉप करेंगे। ये आप एक और मॉडिफिकेशन इसमें क्या किया जा सकता है, दैट आप इसे एम से स्टार्ट करके डी डी वन तक स्टॉप करें। ठीक है, एम लाइन से स्टार्ट करके डी डी वन के बीच में स्टॉप करें।
और फिर टी एम के बीच में रिवर्स ओवल लेकर जाएं एंड मेक लाइक दिस। अगर आपको ये ज्यादा एक्सटेंडेड इलोंगेटेड लग रहा है तो यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो। आप ऐसे भी बना सकती हैं कि पहले आप स्ट्रोक बनाएं, फिर आप एक एम से स्टार्ट करते हुए डी डी वन के बीच में एक डाउन स्ट्रोक लगाएं, देन दिस इज द रिवर्स ओवल, दिस इज द फर्दर कनेक्शन। ठीक है, दिस इज अल्फाबेट टी। आफ्टर अल्फाबेट टी वी विल मेक क्यू। For Q alphabet, the line alignment will be TMBDD1. It is the last alphabet for today, inshallah. TMBDD1. ठीक है, TMBDD1. From between B and D, we will take an upstroke. यहाँ से upstroke निकालेंगे, ये ओवल बनाएंगे in the same way that we have learned कि T को टच नहीं करेगा, B को टच नहीं करेगा, इस तरह से छोटा सा ओवल बनाएंगे। Then a descending, reverse descending loop, reverse RDL, जो कि कहाँ पे स्टॉप करेगा, डी डी वन के बीच में स्टॉप करेगा, एंड देन इट विल मेक अ लूप लाइक दिस एंड दिस इज द अपस्ट्रोक। दिस इज अल्फाबेट क्यू। ठीक है, I'll make it again inshallah, and it is the last. Without complete. जी, without this is the RDL, reverse descending loop, and this is the upstroke. ठीक है, ये यहाँ पर ओवल टच हो गया है तो आई हैव टू मेक इट अनदर टाइम इंशाल्लाह। ये अपस्ट्रोक, ये ओवल, मतलब ये है समझाने का, ओवल स्मॉल रहेगा। ये जो हम समझा रहे हैं कि ना टी लाइन को टच करे ना बी लाइन को टच करे, दैट इट हैज टू बी स्मॉल। एंड देन RDL, reverse descending loop between D D1, and this is the upstroke. ठीक है, I hope these alphabets are clear. इंशाल्लाह मंडे, कल छुट्टी रहेगी, मंडे हम सारे अल्फाबेट्स लोअर केस के कंप्लीट करने के बाद अपर केस की स्टार्ट करेंगे। एंड इंशाल्लाह सॉरी फॉर टुडे कि हम थोड़ा सा डिले हो गए, लेकिन परसों इंशाल्लाह पूरे 5 बजे हमारी क्लास रहेगी। आई होप अल्लाह ताला हमारी मदद करें और सारे काम आसानी से हो जाए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलिhi सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व Wassalam. Allah Hafiz Halima Thanvi.